Good morning, dear students. Welcome back in my class Learn with Shobha. Yes, for sure, we have learned about verbs, right? In tenses we have learned. So now I have written some sentences over here. Let's talk about these. Here, let's talk about basically the verbs. Here I have written I won't. Here I have used V1, right? I want to play. Here again play is V1, right? Next, he wants. Here I have used V1 as serious, and then here again V1 only, and then here Neha wants. I have used here V1 as serious, and then to play. Play is again a verb and V1. Neha and Ram want to play. Here I have used V1 and here I have used V1 again. So, can you differentiate the verb forms? Look, here I have used V1, here I have used V1 and V1, 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 V1. But here I have used V1 as serious, V1 as serious. So, what is the difference? आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ जो just after the subject I have changed the verb forms, right? But how? But here I have not changed. Here V1, here V1, V1, V1. यहाँ मैंने change नहीं की, यहाँ फिर भी change हो रहा है, क्यों? है ना? तो देखो, ये तो हमारे जो first मैंने जो just after subject verbs ली हैं, these are changed according to the subject, है ना? Tenses में हमने rule किया था, if our subject is third person singular, then we need to take aorist, or if the subject is not singular, not third person, plus not third person, then we will take V1 only, right? Same here. So, the first form of the verb is used here with aorist. Sometimes we take V2, V3, right, with helping verb. So यहाँ हम लोग change कर रहे हैं, but यहाँ हम लोग change नहीं कर रहे. Reason behind it, because these are not ordinary verb forms. कैसे पता चलेगा कि ऑर्डिनरी नहीं है और यहाँ हमें सिर्फ V1 ही यूज करना है या कुछ और रूल है? लेट्स टॉक अबाउट दोज रूल्स. एंड फॉर दैट वी हैव वर्ब्स ऑफ टू टाइप्स, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट, राइट? सो लेट्स डिस्कस these two types of verbs. Ready? We were discussing, I have written two sentences and the verb forms. We have two types of verb forms here. We are going to discuss finite and non-finite. Now, what is finite? Finite verbs that change according to the subject. जो subject के according और टेंसेस के रूल्स के अकॉर्डिंग, टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए, दैट इज फाइनाइट वर्ब्स. दैट चेंज, द वर्ब्स दैट चेंज विद द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस और टाइम, और वी कैन से टेंस. टेंस के साथ चेंज हो जाए. The verbs known as finite verbs. These are finite verbs. ये टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहे. आया था तो मैंने यहाँ वांट किया. अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूं सेंटेंस में, यहाँ ही कर दूं, तो यहाँ क्या हो जाएगा? वॉन्ट्स हो जाएगा, है ना? तो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग जो वर्ब्स चेंज हो जाती हैं, those verbs are known as finite verbs. Now let's come to non-finite. Non-finite क्या होती है? Non means not. जो फाइनाइट नहीं है मीन्स जो चेंज नहीं होती है ना. दैट डज नॉट चेंज, द वर्ब दैट डज नॉट चेंज इन द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और टेंस. दोज वर्ब्स आर नोन एज नॉन फाइनाइट. फर्दर वी हैव डिवाइडेड नॉन फाइनाइट इनटू थ्री पार्ट्स. फर्स्ट इज इंफिनिटिव,
जैसे हम लोग यहाँ इनको कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ऑलमोस्ट 4. V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, लाइक V1 ing, है ना. यहाँ हम लेते हैं V1 ing. Here non-finite verbs are further divided into 3 parts. First is non-finite, infinitives, next is gerund, and third is participles. Okay, and further infinitives are divided into 2 parts, to infinitive and bare infinitive. Bare क्या होता है? Nothing is there, so without to. Infinitives. ठीक है. और participles को हम further divide करते हैं 3 parts में. First is present participle, past participle, and third is perfect participle. ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं. नॉन फाइनाइट वर्ब जो है वी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. फर्स्ट इज इंफिनिटिव, सेकंड इज जीरंड and then third is participle. Okay, अब इनकी वर्ब फॉर्म्स क्या रहती हैं? इंफिनिटिव में हम क्या यूज करते हैं, जीरंड में क्या यूज करते हैं और पार्टिसिपल की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? इंफिनिटिव में क्या होता है, हम लोग लेते हैं 2 टाइप्स. आगे फर्दर हमने डिवाइड किया टू इंफिनिटिव और bare इंफिनिटिव. इंफिनिटिव में बेसिकली हम लोग यूज करते हैं V1. ओके, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. अब टू इंफिनिटिव जो है मीन्स जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है दैट विल यूज विद टू. सो इन टू इंफिनिटिव we will use 2 plus V1, and bare infinitive means no 2, nothing else. Bare means nothing, infinitive means V1, so V1 only, right? And in gerund we use V1 plus ing. ठीक है, जीरंड में हम क्या यूज करते हैं? V1 ing, only this form. And for participle we use, for present participle we use V1 ing. For past participle we use third form of the verb, and perfect participle we use having plus V3, having plus V3. ओके, यहाँ V3 को हम लोग लेते हैं V1 में हम ऐड कर देते हैं क्या? ed, t और लाइक दिस थर्ड फॉर्म बनाने के लिए, है ना. तो यहाँ हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल में यूज करते हैं V1 ing. फॉर पास्ट पार्टिसिपल वी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड फॉर perfect participle we use having plus V3. Got it? Now कौन सी वर्ब फॉर्म कहाँ यूज करनी है? अब मैंने यहाँ सेंटेंस में देखो, मैंने यहाँ यूज किया था 2 plus V1. कौन सा वर्ब फॉर्म यूज की यहाँ से? टू इंफिनिटिव, है ना. 2 plus V1 यूज किया इसमें से, तो मैंने क्या यूज किया सेंटेंस में? टू इंफिनिटिव. अब कैसे पता चलेगा कि मुझे यहाँ टू इंफिनिटिव यूज करना था, जीरंड नहीं यूज करना था, पार्टिसिपल नहीं यूज करना था? Let's talk about that. Non-finite verb forms are of 3 types, right? First is infinitive, next is gerund, and third is participle. Okay? Non-finite, finite में तो हमें पता है we have to use V1 with 2 or without 2, है ना. In gerund we use first form of the verb with ing, and in present participle
Again, we have to use V1 with first form of the verb with ing. तो दोनों में डिफरेंस कैसे पता चलेगा, है ना? कि हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ हमें V1 ing gerund यूज करना है और प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करना है ना? तो दोनों में डिफरेंस ये है कि जो gerund है they are basically used as noun and present participles are used as an adjective. अब नाउन और एडजेक्टिव क्या होते हैं? नाउन बेसिकली आर नेमिंग वर्ड्स, है ना? किसी का भी नेम हो सकता है, कोई भी थिंग, कोई भी प्लेस, कोई भी एनी पर्सन, एनी एनिमल, एनी फीलिंग, है ना? किसी भी कोई एक्टिविटी, किसी का भी नाम हो सकता है. और एडजेक्टिव क्या होते हैं? दैट क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन. ठीक है, नाउन और प्रोनाउन की तरह यूज होते हैं. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आई हैव रिटन हियर स्विमिंग, is a good exercise. Right? And one I have written here the phrase burning train. Okay? Burning train. Okay? Now, see, here I have used V1 ing. Here again I have used V1 ing. तो देखो दोनों में नाउन कहाँ पे यूज हो रहा है? हमने एक्सरसाइज का नेम क्या दिया हुआ है? स्विमिंग. हमारी एक्सरसाइज का नेम क्या है? स्विमिंग. तो नेम यूज होता है, नाउन की तरह यूज है, तो इट मींस इट इज अ gerund, है ना? यहाँ नेम की तरह यूज हुआ है, इट मींस इट इज अ gerund. अब यहाँ देखो ट्रेन और बर्निंग, दोनों में से नाउन कौन सा है? ट्रेन, ऑफ कोर्स, राइट? It's a noun. And burning. Burning is the qualifying word for noun. Train, है ना? क्वालिफाई कर रहा है ट्रेन के बारे में, हमें और बता रहा है कि वो कैसी है, जलती हुई ट्रेन, है ना? उसके बारे में हमें और बता रहा है. तो ये क्या है हमारा? एडजेक्टिव. सो इट इज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल. आई होप इट इज क्लियर टू यू. डिफरेंस दोनों में समझ में आया? gerund और प्रेजेंट पार्टिसिपल. पार्टिसिपल के और कौन कौन से टाइप्स हैं? पास्ट पार्टिसिपल है ना? और कौन सा है? परफेक्ट पार्टिसिपल है. प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल में हम लोग क्या यूज करते हैं? V3. एंड परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस V3. ठीक है, तो इनमें तो कोई डिफरेंस करने की जरूरत नहीं है, अपने आप में क्लियर है. और अब इनके हम लोग बात करने वाले हैं फंक्शनिंग की. वेयर डू वी यूज प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, इंफिनिटिव, gerund. वेयर डू वी यूज? लेट्स टॉक अबाउट देयर यूजेस नाउ. सो सिंपल ना? इंटरेस्टिंग है ना? किसी से पूछो कि मैंने यहाँ पे ये वर्ड यूज किया है विद ing. हियर भी अभी देखो एक और रूल भी आता है प्रेजेंट पार्टिसिपल का. टेंसेस के अकॉर्डिंग भी यूज होते हैं, है ना? टेंसेस के अकॉर्डिंग भी हम लोग सिंपल वर्ब फॉर्म की तरह यूज करते हैं वहां. ये भी रूल है. देखो, शी इज कमिंग. अब देखो यहाँ भी V1 ing मैंने यूज किया है, लेकिन यहाँ मैंने कैसे यूज किया है? टेंस के रूल के अकॉर्डिंग, है ना? हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग और टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो गया. तो ये क्या है? फाइनाइट वर्ब है ना? और ये हमारे क्या हुआ है? नॉन फाइनाइट है, जिसमें हम लोग सिंपल वर्ब फॉर्म टेंस के रूल के अकॉर्डिंग यूज नहीं कर रहे हैं. लेकिन हमारी ये जो वर्ब है स्विम, मैंने उसके साथ ing ऐड किया, तो ये क्या बन गया? यहाँ हमने एज ए नाउन, एज ए gerund यूज किया है. ठीक है, चलो थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं इनके बारे में. बहुत सिंपल टॉपिक है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड. आराम से समझो. नहीं समझ में आ रहा जब तक एक पार्ट, उसको रिवाइज करके देखो, रिपीट करके देखो.